بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ برکت والا بنا، اے اللہ ہمارے لیے شعبان کا مہینہ برکت والا بنا، یعنی ہمیں ان مہینوں میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقدمہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا مقدمہ ہے یہ مہینے، اور شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسے آتی ہے جو کہ اسے کہا جاتا ہے کہ شب برات، یعنی برات والی رات۔ اس رات میں عبادت کرنا بہت سارے علماء سے یہ ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور اس کی ثواب بھی ہے، اس عبادت کا اتنا ثواب ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس عبادت کا اتنا ثواب ہے اور اس عبادت کا اتنا ثواب ہے۔ البتہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ عبادات کرنا بدعت ہے۔ کس حد تک بدعت ہے اور کس حد تک ثواب ہے؟ یہ رات عبادت والی ہے اور اس رات میں عبادت جائز ہے اور اس عبادت کا ثواب ہے، یعنی جیسے کہ ایک رات اس سے پہلے گزری جو کہ 27 رجب کی رات تھی، اس میں عبادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ عبادت جائز نہیں تھی، لیکن اس شب برات میں عبادت کرنا جائز ہے اور آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن کچھ باتیں ایسے ہیں کہ وہ اس رات میں کرنا اور اس کو لازمی سمجھنا وہ بدعت ہے، یعنی بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ شب برات کو قبرستان جانا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو اس لیے قبرستان جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں جنت البقیع یا نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف احادیث اس لیے بیان کرتے ہیں کہ فضیلت کی وجہ سے ضعیف حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث اس وقت بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ کوئی ایسی عبادت ہو کہ جس کی کوئی فضیلت ہو، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اس حد تک رکھنا بہتر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرے لوگ جو کہتے ہیں بعض علماء کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ اگر یہ مانا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں، تو یہ اگر مان لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کی تاریکی میں جب اٹھتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈھونڈا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں اور وہاں دعا کر کے واپس آئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، یعنی ہر سال وہ اس رات کو جنت البقیع نہیں گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے، کسی صحابی کو بھی نہیں بتایا اور نہ کسی کو معلوم تھا، بلکہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ڈھونڈا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں اور وہاں دعا کر کے آئے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہی یہ نہیں جانا چاہیے قبرستان، البتہ کوئی اس غرض سے جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں قبرستان عبرت کے لیے، تو وہ اگر زندگی میں ایک بار جائے اور یہ کہیں کہ اسی رات کو یا اسی دن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام گئے ہیں، تو چلو ایک دفعہ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر سال جانا ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बात जिस दर्जे तक साबित हो उसी दर्जे तक इस बात को रखना जायज है, इससे बढ़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस रात को गुस्ल करके इबादत करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। ये गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, ये तो एक त्योहार के लिए होता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दो ईदें, एक इस्लामी त्योहार के तौर पर हमारे लिए एक दो दिन जो है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, ये हमारे लिए रखे हैं। इन दिनों में हम साफ कपड़े पहनते हैं, गुस्ल करते हैं, उस सवाब समझ कर करते हैं, तो ये करना चाहिए। इसका सवाब है, सुन्नत अमल है। खुशबू लगाना, इसी तरह और भी सफाई करना, ये सुन्नत अमल है। लेकिन इस रात के लिए गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, ये किसी भी इस तरह किसी भी उससे हदीस से साबित नहीं है और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। अलबत्ता आप ताजुद के पाबंद है, ताजुद गुजार है, ताजुद पढ़ते हैं, उठ के गुस्ल कर लेते हैं और कोई इबादत करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फर्ज नमाज अदा करते हैं, उसके लिए गुस्ल करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। लेकिन इस रात के साथ खास करना और इस इबादत के लिए खास करना, ये कतई जायज नहीं है, बिदात है। और तीसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित करना और इस तरह करना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई तरह के खाने पकाए हैं या हलवा पकाया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलवा लाया जाता है और वो इस रात में तनाउल फरमाते हैं, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। यानी दीन ने हमें ये नहीं बताया कि आप इस तरह के खाने खाएं, इस तरह के खाने खाएं, मीठा खाएं या इस तरह खाएं, ये जायज नहीं है। ना ही दीन ने पाबंदी लगाई है और ना ही दीन ने हमें ये बताया है, बल्कि ये करना बिदात कहलाता है। यानी ये इबादत तो जायज है, इस तरह करना और इस तरह इबादत समझकर ये खाने खाना ये जायज नहीं है। और इसी तरह हमारे यहाँ ये बातें जो बहुत बिदात समझ कर की जाती हैं, यानी फर्ज नमाज जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करें, हमने इसको पीछे छोड़ दिया है, जो कि फर्ज इबादत है। रोजा फर्ज इबादत है, हज फर्ज इबादत है, इसी तरह और भी इबादतें हैं जो कि कुरान पाक में जिक्र है, अहादीस मुबारका में जिक्र है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। मसाजिद खाली हैं, हम मसाजिद के लिए फर्ज नमाज के लिए नहीं जाते और फजर में फजर की नमाज के लिए नहीं जाते, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। हमें इस बात की फिक्र है कि हम इस रात को इबादत करें, अगर इबादत नहीं की तो ये ऐसा होगा कि हम इससे महरूम हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक नफली इबादतें हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा कहलाता है, मुस्तहब है। आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिला, नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार हैं। आपके लिए माफ नहीं है कि आप नमाज नहीं पढ़े तो आपके लिए माफ हो जाएगी, रोजा नहीं रखे माफ हो जाएगा, हज नहीं करे तो माफ हो जाएगा, ज़कात अदा नहीं करे तो माफ हो जाएगा। ये नहीं है, बल्कि ये मुस्तहिबात और ये नफली इबादतें इस ऐसे हैं कि अगर आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो इस तरह के बातें करना और इस तरह अपने ऊपर कुछ इबादतें लाजिम करना ये जायज नहीं है। और इस रात में जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कमी हो गई, पहले बहुत ज्यादा होता, यानी इस रात को आतिशबाजी करते थे। इस रात में आतिशबाजी इतनी होती थी कि इससे कई नुकसानात और कई तरह के इससे बहुत सारे नुकसानात भी हो जाते थे और लोग इसको लाजमी समझते थे, और कुछ लोग तो लाजमी नहीं समझते बल्कि वैसे ही करते हैं, लेकिन वैसे भी नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि आप यहूद और नसारा के साथ, आप गैर मजहब लोगों के साथ आप इन इबादतों में शरीक ना हुआ करो, इसलिए कि उनके साथ शरीक होने से
मुशाबहत आती है तो इस मुशाबहत से हमें मना किया गया है। यानी गुस्ल करना ये ठीक नहीं है, इस दिन के लिए खास करना, कब्रिस्तान जाना अगर कोई वैसी जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन दीन समझकर इस रात के साथ खास करना जायज नहीं है। कई तरह के खाने बनाना जायज नहीं है, और इसी तरह आतिशबाजी करना ये भी जायज नहीं है, बल्कि दीन ने हमें जो बताया है, दीन के जो अहकामात हैं, हमें उन अहकामात को समझना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। बल्कि मैं तो देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें, जैसी शब बारात या शब महराज का दिन होता है वैसी ये रात होती है, तो इस तरह की गलत बातें बयान करते हैं कि इस रात को ये इबादत इतनी मर्तबा की जाए आपको इतना सवाब मिलेगा, और ये नफल इस नियत से बांध कर इतने मर्तबा इसमें सूरत पड़ी जाए। दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इस तरह की बात साबित है, बल्कि ये लोग जो करते हैं ये पता नहीं किस वजह से करते हैं। और लोग अगर इस पर अमल करेंगे तो लोग इसके साथ इन बिदआत में शामिल हो जाएंगे, इनका भी गुनाह उनको मिलेगा, लिहाजा इससे परहेज करना चाहिए। बल्कि इबादत की रात है, आप इबादत करें। और रोजे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की महीने में कसरत से रखा करते थे। इस नियत से रोजा रखना कि हम रोजा रखेंगे, दिन में रात में इबादत करेंगे, ये इस नियत से करना कि सिर्फ ये 15वीं की रात इबादत, दिन को रोजा रखेंगे, तो ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता जो लोग अयाम 20 के रोजे रखते हैं, यानी तीनों 14, 13, 14, 15 ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, जो लोग ये रोजा रखेंगे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। अलबत्ता खास कर इस दिन का रोजा रखना ये भी बिदात कहलाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सहाबाए कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।